Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shazaib. In this lecture, we're gonna learn how to take the intersection of FA. So let's get started. Let's suppose we have to take the intersection of following two FAs. So let's call this FA FA1 and let's call this second FA FA2. Clear? As you know, empty transactions are not allowed in FA or DFA. That's why we'll make transition table for the intersection of FA, similarly as we did in union of FA. So let's make transition table. But before making a transition table, first name the states of both FAs. I have represented the FA1 as P and FA2 as Q. So P1 is first state, P2 is second, and P3 is third state. Here it is represented as Q, so we have represented the first state as Q1 and second state as Q2. Now in the transition table, for finding the union and intersection of FAs, we always start with the both initial state of both FAs. So how you have to start? You have to combine the initial states of both FAs. Here the initial state of FA1 is P1 and initial state of FA2 is Q1. So we have combined them and it becomes P1 Q1. Okay? And we have named them as Z1. Clear? Now we have to see that now we have started the transition table. We have to see that if we read A from P1, then on which state we reach. Here it is P1. If we read A, then we are on the same state P1. So we have to write it here as P1. So secondly, we have to see that if we read A from Q1, then on which state we are. Here it is Q1. And if we read A, we are on the state Q2. So we have to write it here as Q2. So here we have written the Q2 as here, and it becomes the new state because P1 Q2 is not present in the old states column. So that's why we have named it as Z2. And as when new state comes, we write it here in the old columns, old states column. Clear? Okay, now we have to see that what happens if we read P1 and B. Here it is P1. If we read B, it becomes to P2. And similarly, what happens if we read B from Q1? Here it is Q1. If we read B, then we are on state Q2. So we have to write it here as Q2. And P2 Q2 was not present in the old states column, so that's why we have named it as Z3. It is the new state. As new state comes, we write that state in the old states column. So that's why I have represented that state Z3 in the old states column. Clear? ओके जिस तरह हमने फर्स्ट स्टेप में इस स्टेट के अगेंस्ट जो आया था हमने यहाँ पर लिखा, फिर इसके अगेंस्ट जो आया था फिर हमने यहाँ पर भी लिखा, इसी तरह स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने Z2, Z3, Z4, Z5 और Z6 इस तरह जो जो नई स्टेट आती जाएगी वो आपने ओल्ड स्टेट्स के कॉलम में लिखनी है। उसको लिखने के बाद इसी तरह ट्रांजिशन टेबल को फिल करना है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमने जो इससे पहले वाली वीडियो में यूनियन ऑफ FA किया था ना, इसका ट्रांजिशन टेबल बिल्कुल उसी तरह बनेगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने ये डिसाइड करना होता है कि ट्रांजिशन टेबल के अंदर इनिशियल स्टेट कौन सी होती है और फाइनल स्टेट्स कौन सी होती हैं। इनिशियल स्टेट हमेशा जो सा है फर्स्ट वाली होती है, Z1 होती है। ठीक है, चाहे आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं या यूनियन ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, ट्रांजिशन टेबल में इनिशियल स्टेट फर्स्ट होती है, Z1 इनिशियल स्टेट आ गई। अब आपने ये डिसाइड करना है कि इसकी फाइनल स्टेट कौन कौन सी होगी। तो अगर हम यूनियन के लिए बना रहे होते, दोनों FA का यूनियन ले रहे होते, तो यूनियन के लिए हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा था कि पहले हमने देखना है फर्स्ट FA में फाइनल स्टेट क्या है इसकी P3। तो जिस में यहाँ पे P3 आ रहा होगा उसके साथ हमने फाइनल प्लस का सिंबल लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ P3 आ रहा था, ये प्लस लगा दिया, और इसके अलावा P3 हमारे पास इसके साथ आ रहा है, तो इसको हमने फाइनल स्टेट बना दिया। सेकंड स्टेप क्या था फाइनल स्टेट का कि सेकंड FA में जो फाइनल स्टेट थी वो क्या है, हमारे पास Q1 है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे Q1 किस किस के साथ आ रहा है। तो देखें Q1 इसके साथ आ रहा है,
यहाँ पे इसके साथ आ रहा है Q1, ठीक है। उसके अलावा Q1 किसके साथ है, इसके साथ आ रहा है, इसको भी फाइनल बना देते हैं। और उसके बाद आपने इस वाली स्टेट को भी फाइनल बना दिया। तो ये आपके पास जो इसके बाद आप जो डायग्राम बनाएंगे ना इससे, तो वो किसकी होगी, वो यूनियन की होगी। लेकिन जब हमें जो सा ना इंटरसेक्शन लेना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ फाइनल स्टेट को देखते हैं। हम देखें FA1 की फाइनल स्टेट क्या थी, P3, और FA2 की जो फाइनल स्टेट है वो क्या है, Q1। हम क्या करेंगे, जिसमें ये दोनों आ रहे होंगे सिर्फ उसको फाइनल स्टेट बनाना है। तो देखें दोनों किस में आ रहे हैं, P1 आ रहा है इसमें, Q1 नहीं है, P3 इसमें नहीं आ रहा, P3 इसमें भी नहीं है, Q1 इसमें आ रहा था लेकिन इसमें P3 नहीं था। तो हम दोनों को देखेंगे, तो दोनों अगर हम देखें तो P3 और Q1 सिर्फ इसमें आ रहा है। इसका मतलब है इंटरसेक्शन के लिए जो फाइनल स्टेट बनाएंगे वो ये वाली होगी, ठीक। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ ये वाली फाइनल स्टेट है, और जो हमने यूनियन लिया था उसमें ये वाली सारी फाइनल स्टेट्स होंगी, ठीक है। इसके बाद उसी तरह आपने क्या करना है, देखें कितनी स्टेट्स बनी है, 6। तो आपने क्या करना है, 6 स्टेट्स बना लेनी है। 6 स्टेट्स बनाने के बाद उसके बाद इन एरो के अगेंस्ट जो जहाँ जहाँ पे एरो आता है, ट्रांजिशन टेबल से आपने देख लेना है, जहाँ जहाँ से एरो आता है आपने एरोस बना देने हैं। उसके बाद इनिशियल स्टेट तो Z1 होगी, और अगर आपने यूनियन की डायग्राम बनानी है तो फिर इस टेबल से आप देखेंगे ये वाली फाइनल स्टेट्स बनाएंगे। लेकिन अगर आपने इंटरसेक्शन की बनानी है तो फिर आप इस टेबल से फाइनल स्टेट्स को देखेंगे। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी कि FA के यूनियन और इंटरसेक्शन में सिर्फ फाइनल स्टेट्स का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी ट्रांजिशन टेबल भी वैसे ही बनता है जैसे हमने पहले वीडियो में सीखा था, ठीक है। और उसी तरह ट्रांजिशन टेबल के बाद जो डायग्राम होती है वो भी बिल्कुल इसी तरह से होती है। तो अगर आपकी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट करके या मुझे फेसबुक पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।